رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ غذائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کی سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا۔ جیسے جیسے انسان میچور ہوتا جاتا ہے، خوشیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ عزت تو سب کو چاہیے، مگر لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ منافق جب کسی کو گراتا ہے تو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ حاسد پر چاہے ہزار احسان بھی کر لو، مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ اے اللہ، مجھے بس تیرا ساتھ چاہیے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ مت بھولیں اپنی موت کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، عزیز و اقارب کو، خدا کو، اپنے وعدے کو، زندگی کے صحیح مقصد کو اور صلہ رحمی کو۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ 7 چیزیں ساتھ کے بغیر بیکار ہیں۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے۔ نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے۔ زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو۔ ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے۔ دعا کرے لیکن محنت نہ کرے۔ بڑی بڑی نیکیاں کرے، دین میں اخلاص سے کام نہ لے۔ اللہ کا راضی ہو جانا کافی ہے۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام انسان ہیں۔ جو ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں ان کے لیے ہم متکبر و مغرور ہیں۔ جو ہمیں جانتے اور سمجھتے ہیں ان کے خیال میں ہم معقول انسان ہیں۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک ہم غیر معمولی ہیں۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے خیال میں ہم نہایت برے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا نقطہ نظر اور انداز فکر ہے، سو خود کو لوگوں کی نظر میں بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ اللہ کا راضی اور خوش ہو جانا آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کی خوشنودی ایسی خواہش ہے جو حاصل نہیں کی جا سکتی، جبکہ اللہ کی خوشنودی ایسا مقصد ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بس جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسے چھوڑ دیں اور جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اسے حاصل کر لیں۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر اور آخرت میں جنت۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ 5 عادتیں چھوڑ دیں: کسی کے پیچھے بھاگتے رہنا، کسی کی منتیں کرتے رہنا، کسی کو خوشامد کرتے رہنا، کسی بے قدرے کا انتظار کرتے رہنا اور کسی کو بار بار متاثر کرتے رہنے کی کوشش کرنا۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ ان 9 چیزوں کو ظاہر مت کرو: کسی کا عیب، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ،
दिखावे के गरीब ना बनो। अगर आप परिंदों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप पिंजरा खरीदें, बल्कि घर में एक दरख्त लगाएं। कुछ नहीं मिलता ज़माने में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मुझे मिला धूप में आने से। वज़ू करना दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है, जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता और पाक करता है। जब अपने चले जाएं तो कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खंडरात में बदल जाने वाली पुरानी खूबसूरत इमारतें ये सबूत हैं कि हमें भी भुला दिया जाएगा। खुद को इतना समझदार न समझें कि दूसरे बेवकूफ़ नज़र आने लगें, और ख़ुद को इतना नेक न जाने कि बाकी सब गुनहगार लगने लगें। या अल्लाह, हमें हर मर्ज़, कर्ज़, रुसवाई, तंगदस्ती और नागहानी आफतों से महफूज फरमा। आमीन। ए मेरे अल्लाह, मालूम नहीं कि कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन मेरी मौत से पहले मुझे मकसद हयात से मिला देना। मुझे ऐसी हालत में अपने पास बुलाना कि तू मुझसे राज़ी हो। मुझे समझ आ गई है कि अल्लाह सिर्फ़ तू ज़रूरी है। मैं जानती हूँ सब फ़ानी है और सिर्फ़ तू बाकी है। बस मुझे अपने करीब कर ले कि ज़िंदगी की सख्तियाँ तेरी मोहब्बत में बर्दाश्त कर सकूँ, और तेरा ज़िक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत बेहतरीन तरीके से अदा कर सकूँ। आमीन सुम आमीन। रोज़े रखा करो, क्योंकि इसका कोई मिसल नहीं। नेक काम में जिस कदर हो सके जल्दी करो। ज़िंदगी उजाड़ने वालों को लगता है उनका हिसाब नहीं होगा। अल्लाह ताला की नेमतें 3 तरह की होती हैं। बंदे के पास मौजूद वो नेमतें जो उसके इल्म में होती हैं, वो नेमतें जिनके मिलने से उसे उम्मीद होती है, और वो नेमतें जो उसके पास मौजूद होती हैं लेकिन उसे उनका शऊर नहीं होता। खजूर की अहमियत। आज से सदियों पहले जब कोई नहीं जानता था कि मैग्नीशियम और पोटेशियम क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना की खुराक में खजूर को शामिल करने का मशवरा दिया। जिस घर में खजूर ना हो वो उस घर की तरह है जिसमें खाना ही ना हो। माल और दौलत की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक की वजह से इज्जत बनती है। जिक्र शैतान को दफ़ा करता है, दिल से फ़िक्र और गम को दूर करता है, बदन और दिल को कुव्वत बख्शता है, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, रिज़्क को खींचता है, अल्लाह की मार्फत का दरवाज़ा खोल देता है, अल्लाह के अजाब से निजात का ज़रिया है। और बेहतरीन अज़कार तीसरा कलमा दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार हैं। जिसको रोज़े ने खाने या पीने से रोक दिया कि जिसकी उसे ख्वाहिश थी, तो अल्लाह पाक उसे जन्नती फलों में से खिलाएगा और जन्नती शराब से सैराब करेगा। खुश रहने के लिए ख़ुद को बदलें। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बकिया 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलना ज़रूरी है। रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ ख़रीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद आंसू रखें, जो चाहे ले लें। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, रुखसत हो जाते हैं पर दोस्ती के पल हमेशा याद आते हैं। भूल जाना तो इंसान की फितरत है, पर कुछ दोस्त यादों में हमेशा याद आते हैं। नेमतें अल्लाह का डर छोड़ने और लोगों के साथ बुरा सलूक इख्तियार करने की वजह से छीन ली जाती हैं। दरख्त पर जब फल हों तो उसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफ़ान और सैलाब में उस दरख्त का सहारा सिर्फ उसकी अपनी जड़ें होती हैं। अल्लाह जब किसी को हिदायत के लिए चुनता है तो उसके दिल में उतर आने का फ़ैसला करता है, लेकिन दिल में उतरने से पहले वो उसके दिल पर लश्कर कशी करता है। वो वक्त, वो हालात, वो वाक़यात दीद के काबिल हुआ करते हैं। उसके दिल में मौजूद ख्वाहिशात को उजाड़ दिया जाता है, ज़मीन साफ़ करके रख दी जाती है। ना कि कोई पहाड़, ना कंकर, बस सिर्फ साफ़ सुथरी हमवार ज़मीन
जिस दिल में अल्लाह का तख्त बिछ जाए वहाँ कोई और कैसे रह सकता है। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए वो गलत कहते हैं, बल्कि बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे कि कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए। जिस कौम में रिश्तेदारी तोड़ने वाला होता है उस पर रहमत नहीं उतरती। कोई कहता है बड़े का गोश्त नुकसानदेह है तो कोई कहता है बकरे और मुर्गे का। दर हकीकत सबसे ज़्यादा नुकसानदेह अपने मुर्दा भाई का गोश्त है जो गीबत करके खाया जाता है। सबसे मजबूत इंसान कौन है? हज़रत अंस से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुज़र रहे थे जो पत्थर उठा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा, ये पत्थर उठाकर कुव्वत यानी मजबूती हासिल करना चाहते हैं। नबी पाक ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुव्वत वाली या मजबूत चीज़ बता दूं? या इसी तरह की कोई और बात कही उन्होंने। वो शख्स जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है वो उससे ज़्यादा कुव्वत और मजबूत कोई नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे के लिए खैर का मामला करता है तो लोगों की ज़रूरियात उसके साथ बांध देता है। जिंदगी बर्फ की तरह होती है, नेक कामों में गुजार दो वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें ज़बान ने मौत की घाट उतार दिया। औलाद के लिए दुआ। या अल्लाह मेरी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह मेरी औलाद को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मेरी औलाद के नसीब में खुशियाँ और आसानियाँ अता कर। या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे हक़ में सुरखरू करने वाली नेमत और रहमत बना। आमीन। माँ बाप को खुश करना दुनिया का आसान तरीन काम है। उनको आपसे ज़रा सी तवज्जो नरमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता। ये ज़िंदगी के वो झरने हैं जो महज आपके लिए बहते हैं। उनका खुश्क हो जाना औलाद की बड़ी बदकिस्मती है। आज की माँ जाग ज़रा, काश इन माँओं को वो आँखें कुछ देर देखने को मिल जाएं जो हवस परस्तों के चेहरे पर लगी हैं, तो फिर कभी बच्चियों को ना तो ऐसा लिबास पहनाएं, ना ये कहें कि बच्ची है कुछ नहीं होता। अल्लाह की रहमत से दूर है वो शख्स जिसकी तरफ उसका भाई सुलह के लिए हाथ बढ़ाए और वो सुलह ना करे। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुम उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं खुदारा उनकी कदर कीजिए। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन जन्म लेते हैं। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब लोग आपके मयार को नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। बहुत सी गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो गलतियाँ लोगों को पहचानने में होती हैं उनका खमियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फहाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे और जो बात तुम में नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना ही गनीमत है। दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना सरासर खसारा ही खसारा है। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता, जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। अगर तुम अपने वारसों को अपने पीछे मालदार छोड़ जाओ तो ये उससे बेहतर है कि तुम उन्हें मोहताज छोड़ो कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, जबकि मुसलमान औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। 2 जायद कपड़ों में एक स्कार्फ और दूसरा सीना बंद होता है। अफसोस है इस मुसलमान औरत पर जो पूरी ज़िंदगी अपना सर और सीना खुला छोड़े, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने पास इन अज़ा को ढक कर ही बुलाते हैं। ए मुसलमान औरत, अफसोस है तुझ पर, अल्लाह तुझसे कितनी हया करते हैं, लेकिन तू अल्लाह से बिल्कुल भी हया नहीं करती। हज़रत अली फरमाते हैं,
जब तुम अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उसे वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और उसकी या उसकी बहन की मौत हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया है और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया है। अपनी आदत बनाएं, हर रोज़ अपने लिए जब दुआ करें तो उसके बाद दूसरों के लिए दुआ ज़रूर करें। किसी की सेहत के लिए, किसी की औलाद के लिए, किसी के माँ बाप के लिए, किसी को परेशान देखें तो उसके लिए खुशियों की दुआ करें। ज़्यादा ना कर सकें तो किसी एक इंसान के लिए दुआ ज़रूर करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान बंदा नहीं जो अपने भाई की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करे, मगर एक फरिश्ता है जो कहता है तुम्हें भी उसके मानिंद मिले। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। ए लोगों, मुझे खो देने से पहले मुझसे पूछ लो, मैं ज़मीन की राहों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। दिल और ज़बान अगर पाक हों तो उनसे बेहतर कोई चीज़ नहीं, और अगर नापाक हों तो उनसे भी बुरी चीज़ और कोई नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है, मुसीबतें याद रखता है और नेमतें भूल जाता है।